Yeah. So I was saying that whenever we enter any sale order in ERP, we take help from the available price list in ERP. So there are types of sale orders that we can process, and sorry, this is that icon model SO, and whenever I come to this icon, I can see all these small icons on this ribbon. Then I go for creating a new SO. So first it will ask me which type of SO you want to process. We are processing dealer SO, then end user SO, export SO, government SO, and STR SO nowadays. Inter-unit we are not processing because nowadays we are having only one unit at MIDC. So this is the dealer SO. Say if I say okay, then it will show me the first screen that is used for this SO. So it will ask from which depot you want to dispatch the machines for whatever order is going to be processed here. So for dealers, we are most of all we are going to dispatch the machines from MIDC factory only. So it is showing I have added MIDC factory. Then suppose there is one dealer called um, Om, Om Scale. Scale. Huh. Om Scale Malegaon. Uh, Now it is showing the dealer name after entering that dealer. It will ask me any delivery address special for this dealer. I can update that delivery address here also. Like this, manage delivery address. I can add one more and just go on like that. Because some of the dealers get their material at hubs of the Cefex and Gati. So we can enter here the delivery address as Cefex hub and all that, and for that street, city name and state. I'm not going to add any delivery address. That means the shipping and billing address for this dealer are same. Then what next is the price list. So we have many types of price lists, and that price list is assigned to dealers. Suppose there is one dealer that वो डीलर को मोर देन वन प्राइस लिस्ट हो सकते हैं. और अभी ये जो है वो 4 प्राइस लिस्ट जो दिख रहे हैं, तो वो अभी ऐसा है कि ये ओम स्किल नाम का जो डीलर है मालेगांव का, वो तो विद इन महाराष्ट्र है. सो ऐसा रहता है कि जो मशीन्स हम यहाँ से बेचते हैं जो कि अबव के 50 kg है, तो अगर वो विद इन महाराष्ट्र हम बेच रहे हैं तो वी नीड टू स्टैम्प देम एट MIDC फैक्ट्री ओनली. That's why we have created within Maharashtra and out of Maharashtra price list for all the dealers. Then there is a dealer A price list and dealer B price list. So dealer B is only for that. Suppose एक dealer ऐसा बिलो बिलो 100 मशीन्स पर मंथ ले रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं कि उसको हम थोड़ा सा प्राइस ज्यादा दे करके उसका प्राइस लिस्ट बना रहे हैं, मे बी 3% और तो उसका प्राइस बढ़ रहा है. अगर वो मोर देन 100 मशीन्स ले रहा है तो हम उसके लिए डीलर ए प्राइस लिस्ट बना रहे हैं और उसका प्राइस जो है वो थोड़ा कंपैरेटिवली लेस रहेगा, लाइक दैट. सो अभी यहाँ पे ऐसा है कि ओम स्किल सर्विस को ये 4 प्राइस लिस्ट असाइन हो गई है. अगर वो वेइंग स्केल बेच रहा है तो मैं ये प्राइस लिस्ट सिलेक्ट करूंगी. अगर वो करेंसी काउंटिंग बेच रहा है तो ये 2 प्राइस लिस्ट उसको असाइंड है. अगर वो EMFR हम उसको बेच रहे हैं फिलहाल, तो हम उसको ये प्राइस लिस्ट असाइन करने वाले हैं, like that. So I will firstly select this one only because this is our common price list. I will say okay. Then see, it is showing here me the closing balance, current balance of that dealer.
मीन्स अभी उसके 12,274 रुपए हमारे पास पड़े हुए हैं, जिसके लिए हम यहाँ से उसकी ऑर्डर डाल सकते हैं। तो अगर उसका ऑर्डर कुछ मोर देन 12,000 से है, तो इट विल ऑटोमेटिकली रेड। सो वी विल गो फॉर दैट ओनली। आपको समझ में आ जाएगा ये। मैं अगर कोई आइटम सिलेक्ट करती हूँ, ये एक मॉडल है हमारा, तो मैंने वो मॉडल प्राइस लिस्ट से सिलेक्ट किया है। वो प्राइस लिस्ट सिलेक्ट करते ही वो सब प्राइस लिस्ट में से ही मिलेगा मेरे को, जो भी उसमें डाला हुआ है वो। तो वो प्राइस एनपीडब्ल्यू मशीन आ गया, उसका पर यूनिट रेट जो प्राइस लिस्ट में डाला हुआ था वो अपने आप आ गया। Then it will show me add accessories. So I can add here accessories assigned for that model only. मतलब कि अभी ये जो मॉडल मैंने सिलेक्ट किया था, उस मॉडल को 1 2 3 4 5 एक्सेसरीज असाइन की हुई है हमने अंदर से। तो वो 5 एक्सेसरीज ही वो दिखा रहा है। तो मैं इसको ये सिलेक्ट करती हूँ सिर्फ बैटरी। ओके, तो मैंने इसको ओके कर दिया अभी। और अगर मुझे कुछ नोट ऐड करना है तो यस, विथ स्टैंपिंग आई हैव टू send those machines. So I will just select that stamping note, स्टैंपिंग रिक्वायर्ड, ऐसा एक नोट है हमारा। बिकॉज ये स्टैंपिंग करके ही मशीन हमारे यहाँ से जाने चाहिए। ये आपको पता है, ये आप ही ने किया है, क्योंकि शंतनु का जो रिपोर्ट है आपका, उस स्टैंपिंग नोट जिसमें लगा हुआ है वो उसको सैग्रीगेट कर रहे हैं हमारे एंड पर। फिर हाँ, फिर उसको हम अलग से स्टैंपिंग के चलन भरने के लिए उसका अलग एक एक्सेल बना रहे हैं, और वो आगे भरने के लिए चलन भरने के लिए वो डिस्पैच में दे रहे हैं। ऐसा वो सेग्रीगेशन किया है हमने उसको। Further, it is asking me how many machines. So for that, I have to go to end item. Means it will ask me the quantity of this combination. So if I go for say 10, then see the price is exceeding 12,000. तो वो कितना एक्सेड हुआ है वो रेड में दिखा रहा है। तो अगर मेरे को ये सेव करनी है फिर भी, तो वो ऑथराइजेशन पूछेगा, मतलब कि पासवर्ड। सपोज समवन हु केयर्स फॉर दिस डीलर, जो भी आरएम है इसका, तो उसका फोन आ गया है कि यू कैन प्रोसीड फॉर दिस ऑर्डर एंड आई एम रिस्पॉन्सिबल इफ देयर इज एनी ड्यू अमाउंट। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ उसका एक पासवर्ड रहता है वो डाल देंगे। देखिए, मैं अगर यहाँ पे सेव में जाती हूँ तो इट विल आस्क फॉर पासवर्ड। यस, देन यू एंटर योर पासवर्ड। अगर मैंने इसको पासवर्ड डाल दिया तो ये सेव हो जाएगा। वो जो पासवर्ड है वो 2 3 लोगों को वहां पे नीचे जो डेटा एंट्री करते हैं उनको हमने बता के रखा है, और उनको वो फोन आ जाता है वो आरएम का, और वो तुरंत वो पासवर्ड डाल के आगे जाते हैं। तो फिलहाल तो मैं ये डाल। यस 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 यस। हाँ, और ये लॉग भी सेव हो जाएगा। मतलब कि हाँ, मतलब कि ये ऐसा ओटीपी आया था और हमने वो एंट्री किया और ये लॉग ऐसे ऐसे सेव हुआ। क्योंकि फिलहाल इसमें कोई लॉग हम सेव नहीं कर रहे कि क्यों। यस यस। हाँ हाँ। तो दैट इज सो सिंपल कि ये मैंने अभी ऑर्डर डाल दिया, तो ये यहाँ पर उसका एसओ नंबर आ जाता है, यहाँ पर उसका डेट आ जाता है। ये फॉक्सप्रो एसओ नंबर ऐसा था, जब भी हमने फॉक्सप्रो में से यहाँ पे लाया ना, तो 2 दिन हमारा ऐसा चला था कि फॉक्सप्रो में भी एंट्री करो, यहाँ पर भी एंट्री करो, ऐसा 2 दिन चला था। इसीलिए आलोक सर ने, हाँ हाँ, वो आलोक सर ने ये एक्स्ट्रा हमको दे दिया था, ऐसा था वो। हाँ, और ये योर पीओ नंबर, सपोज द डीलर हैज गिवन सम पीओ नंबर ऑन हिज पीओ, देन वी गेट इट एंटर्ड हियर ओनली। हाँ, देन, हाँ देन वी कैन चेंज हियर द शेड्यूल डेट आल्सो। सपोज कब डीलर हम उसको
डिस्पैच करना चाहते हैं तो दैट वी कैन चेंज हियर। हाँ। हाँ, बस इतना सब है। एंड वी कैन। ओके, से यहाँ पर हमको टैक्सेस दिखा रहा है कि सीजीएसटी और एसजीएसटी जो है वो यहाँ पर दिखा रहा है। यस। हाँ, यस। हाँ, यस, इट इज अगेंस्ट द प्राइस लिस्ट। वो प्राइस लिस्ट में सब टैक्स डाले हुए हैं, तो मैं आपको वो तुरंत अभी वो दिखा देती हूँ। एक्चुअली ना, ये हाँ, ये थोड़ा वो पुराना वैट वगैरह था ना, तब का ये उसका एंट्री पड़ा हुआ है। सो वी कैन रिमूव दिस। दिस इज। हाँ, हाँ, हाँ। यस, वी कैन इग्नोर दिस वन आल्सो। यस। यस। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। हाँ, ये नीचे सब उसका आ गया है। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर। Next, we can add again second also. Suppose he wants some another model, then we can go from here also. I'm going for another model. Huh? So, we have stock in BSR also. Suppose it is matching, then we will dispatch it on the same day. Yes, यस, यस, यस। फास्ट मूविंग के लिए हम फास्ट मूविंग वही पीपीसी है सर। मतलब कि पीपीसी में हम क्या करते हैं कि 1 मंथ का नेक्स्ट मंथ का प्रोडक्शन जो है वो इस मंथ में कर 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 रखते हैं। यस, हाँ, 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 तो वही पीपीसी का जो है वो सर आपको शायद 2 दिन बाद बता पाएंगे, ऐसा है। हम्म। 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 यस। एग्जैक्टली। हम्म। यस, 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 एग्जैक्टली, ऐसा ही होगा। So I can add one more model also here. Say I'm going to this model. Hmm. Hmm. Yes, yes. Actually, what our daily practices, they just dispatch people ask us, means I'm working in operations. So they ask me whether you can give me these all these remaining things within 1 or 2 days, then I will hold all this material, ready material, and then we will dispatch it, all the remaining material also, right? But if there is any shortage for remaining material, then I will ask them to dispatch the matching machines and don't wait for the remaining machines. हाँ. हम्म. 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 यस, यस, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, ऐसा ही होता है। ऑर्डर।
PO, SO, correct. Purchase order. Hmm. Uh, yes, our sales order and the customer's PO. Huh. I can add multiple items in this also. See, I can add accessories for that platform model. I'm adding that tools. Yes, that I will show you. I'm adding two accessories, and here I can change the quantity also. Suppose he wants two teledetachables, I can change it as two. Hmm. Means we have functionality for this also, because maybe they can ask for one more teledetachable and we can provide them. There is actually there is a provision for only one teledetachable, but they can ask for two, as they can use that remaining teledetachable for their available machine, like that. So I will say okay here. Then end item, enter quantity, say I will say 5. Then it will get again added here and this figure will change. So if I save this, then this order will be saved. And whenever I'm checking for next day's schedule, I will check whether this order is for matching or not. If it is not matching with the BSR stock, that is finished department stock, then I will get that machines to be made in production department according to the combination codes. So I'm not saving this. I will just come back. Here I can see all the orders, those are processed. Now see there next, should I show you first all the types of orders, or we go back for price list first? Okay, I will show you end user order first, then this is end user order. Say end user order is related with branch, means that sales executive has collected one order and he has processed it, and he may process it for his branch depot, or he may process it for MIDC factory depot. Suppose the machine is not available with him as a stock. Generally, branch is considered as a depot, and that depot has some finished goods stock with them for cash and carry. But suppose the machine is bigger and not available with his stock, then he can process the order directly for MIDC factory, and that machine will be get prepared here, and we will send the machine wherever he needs at the same delivery address. Same, suppose the customer is in Chalisgaon and we are sitting at Dhule, but the sales executive has to go to Chalisgaon and take the order, and he will say that I'm not going to carry that machine, you directly send it to Chalisgaon. So what he will do, he will just give us a delivery address for Chalisgaon, and we will process the order for Chalisgaon and send the machine through Safex or Gati to Chalisgaon to the customer. So I will process one order for Dhule. Here I will consider that the machine is available at Dhule marketing, means at the depot. So I will process it as Dhule marketing depot. Means there is this machine is smaller and it is available at marketing branch. So he can process it in depot. This, but even if that machine is available at his depot, he has to send the sale order, because all these things will be done at MIDC office only. So we will receive that order first, then the data entry operator will process that order, then he will the sales executive will inform us about the stamping number of the machine available at his end. Then what we will do,
while making the invoice, we will go for that stamping number, make the invoice and send him the PDF file of that invoice. He will take the print of that invoice, and then with the machine and that invoice, he will go to the customer and get the cash from the customer, like that. So suppose here the RM Chemical. RM Chemical is one of our customer. Then when there is the end user order, we have one additional thing. The customer can pay in cash or post-dated check. Actually, nowadays, no one is paying with post-dated check, but we have kept this option. So we will go for cash only. Then select the price list. Dhule marketing branch is assigned with Maharashtra MRP price list. So I have to select this price list only. I will go with this one. Then I will select the item. Here it is asking for the tax structure, because there are many tax structure assigned to this price list. He will ask tax structure. So I will select GST, Maharashtra 18%. Say OK. And the machine's price is 2150. The taxes are like this. And I can add, there are no accessories for this model. So I will just go for end item as one quantity. And it will show me all the figures here, that with GST, the price of this machine is 2,537. I can save this, and he can sell the machine available at his end, like that. Is this clear? So this is the SO number actually. SO number here it is changed because we are marketing branch. So DHL MK we have given as the prefix for this order. So I will cancel. Then there is again one more type, that is government SO. In government SO, again there is branch. I can select MIDC factory. So sorry, in government, I think the thing nowadays you are working for, you are assigning some customers to the Deshmukh branch and all that, right? So here we have the government business branches, right? Yes, we'll continue. See, I was just telling you that you are changing some customers from one branch to another nowadays, right? That is related to this one only. So हाँ, देखो ये अभी क्या हुआ है कि उन्होंने ब्रांच डाल के रखा था बहुत जगह पर हेड ऑफिस, एंड और वो लोग जो थे वो लोग अलग ही थे जिन्होंने ये मशीन, जिनके थ्रू ये मशीन बेचा गया था. Suppose Deshmukh sir was one of the government branch business person for government branch. So what we have to do here is we have to get the person or the branch related to that person first here to be added in this government SO. Otherwise जो उनका क्या बोलते हैं उसको सैलरी सॉरी इंसेंटिव जो है वो करेक्टली नहीं जाएगा, और जो हमको उसका बैलेंस अमाउंट जो आने वाला है हमको गवर्नमेंट से, उसके लिए हमें किसे फॉलो अप करना है, दैट वी आर नॉट गेटिंग ऑल दैट वी आर गेटिंग इन एजिंग रिपोर्ट. सो एजिंग में अगर करेक्ट ब्रांच नहीं मिल रहा है तो वो सब गड़बड़ हो गया था. इसलिए अभी हमने क्या किया, जैसे आपने सजेस्ट किया था कि बिजनेस ऐसा वर्ड डाले तो वो ब्रांच जो है वो ऊपर आ जाती है, राइट?
तो हमने वो ऐसे ऊपर डालने के लिए ऐसे 4-5 ब्रांचेस बना लिए हैं अभी। तो उसी ब्रांच में हम गवर्नमेंट का ऑर्डर जो है वो प्रोसेस करते हैं। सो आई एम गोइंग विथ दिस नाउ, मेडिसी फैक्ट्री। हाँ हाँ हाँ। एक्चुअली आपने रिपोर्ट कौन सा लिया था? ये ओके ओके ओके। हाँ तो है ना, वो और एक रिपोर्ट भी है उसमें, तो वो भी हमको अभी देखना पड़ेगा। ये होने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। यस। या यस 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 यस। सॉरी फॉर दैट, दैट एक्चुअली आई एम नॉट वर्किंग ऑन दैट। एजिंग में मैं काम नहीं करती हूँ थोड़ा, वो एजिंग में दूसरे लोग काम कर रहे हैं, तो मुझे लगा यही रिपोर्ट रिपोर्ट पर वो काम काम करते हैं, तो वो शायद मेरे से गलती हो गई है। हम्म हम्म। सो कस्टमर फॉर एडिशनल ऐसा कुछ तो भी रहता है उनका, एडिशनल स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन लखनऊ। मतलब कि ये गवर्नमेंट के लिए अगर हम ऑर्डर डाल रहे हैं तो हम इनका कस्टमर क्रिएट करते हैं, एंड इसमें ऐसा रहता है कि करीबन 50,000 से आसपास मशीन रहते हैं, लेकिन उनमें ऐसा रहता है कि डिलीवरी एड्रेसेस हर एक के अलग अलग रहते हैं। कि सपोज 200 मशीन यहाँ पे देने हैं, 200 मशीन यहाँ पे देने के हैं, 1000 मशीन वहां पे देने के हैं, ऐसा रहता है। लेकिन उनका कस्टमर का एड्रेस एक ही रहता है, लेकिन उनके डिलीवरी एड्रेस जो रहते हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो हम क्या करते हैं कि जो डिलीवरी एड्रेस अलग अलग है उनके लिए अलग अलग ऑर्डर्स जो है वो प्लेस करते जाते हैं, लाइक दैट। तो ये अभी एडिशनल स्टैटिस्टिकल है, तो उनका कुछ तो भी डिलीवरी एड्रेस होगा ही यहाँ पर, तो मैं यहाँ पे डाल सकती हूँ। शायद नहीं है, इसका क्रेडिट नहीं है। तब तक मैं बोल देती हूँ आपको कि ये इसमें ऐसा है कि ये यहाँ पर हम प्राइस लिस्ट नहीं यूज कर रहे, बिकॉज एक मशीन का जो प्राइस देशमुख सर ने कुछ अलग मशीन के उस मशीन के लिए कुछ अलग प्राइस लिया है, और दूसरे कोई आरएम ने हमारे दूसरे उसी मशीन के लिए दूसरा प्राइस लिया है। तो इसके लिए हम कोई प्राइस लिस्ट फाइनल नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हमने गवर्नमेंट ऑर्डर के लिए कोई भी प्राइस लिस्ट नहीं रहता है, वो डायरेक्टली जैसी ऑर्डर आई है सामने उस तरह से ऑर्डर प्रोसेस करते जाना है, बस इतना ही रहता है हमारे हाथ में। So suppose I select this one as delivery address and select item, go for selection. हाँ। नहीं, ऐसा है कि यहाँ पर प्राइस लिस्ट इसलिए नहीं डाला है क्योंकि प्राइसेस अलग अलग रहते हैं, लेकिन जो डालने वाला, जो प्राइस ये एसओ डालने वाला जो भी है उसको पता रहता है, क्योंकि उसके सामने ऑर्डर रहती है जो मिली है उसको गवर्नमेंट से। तो यस यस, वही मैं आपको दिखा रही हूँ अभी। हम्म। ये डायरेक्टली पूरा मिल जाता है मेरे को, जब भी मैं सिलेक्ट आइटम के लिए जाती हूँ तो जितने भी फिनिश्ड आइटम्स हमारे यहाँ पर मॉडल्स बने हुए हैं वो डायरेक्टली यहाँ पे शो हो जाते हैं। तो इस तरह से ये दिख रहा है मेरे को अभी। तो इसमें अगर ये मुझे पता है इसमें एक्सेसरीज नहीं है, तो मैं सिर्फ यहाँ पे अभी वो टैक्स के लिए पूछ रहा है अभी कि ये जो है वो लखनऊ जाने वाला है, दूर से लखनऊ जाने वाला है, मतलब कि मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगी आउट ऑफ स्टेट 18%, ये टैक्स में सिलेक्ट करूंगी, एंड देन आई विल से ओके। सो ये ऑटोमेटिकली अप्लाई हो गया, देन इट इज आस्किंग मी फॉर रेट पर यूनिट। सो आई नो दैट मेरे सामने जो ऑर्डर रखी हुई है उसमें इसका प्राइस जो दिया है वो 1400 रुपए है। सो आई विल जस्ट गो एंड से इट इज 1400।
देन इट विल आस्क मी फॉर क्वांटिटी। तो मुझे पता है कि ये जो बल्हा नाम का गांव है, वहां पर मुझे सिर्फ सपोज 200, एक मिनट, हाँ एंड आइटम करना है मुझे, करेक्ट। यहाँ पे मेरे को 200 डालने हैं मशीन्स, तो 200 भेजने हैं मशीन्स, तो मैं यहाँ पर एंड आइटम में जाकर के 200 डाल दूंगी। तो ये इसका ऑर्डर प्रिपेयर हो गया। ये मैं सेव करती हूँ तो ऑटोमेटिकली ये सेव हो जाएगा। इसका नाम ये आ जाएगा DHL SO/2627-3974, और ये मुझे दिखने लग जाएगा। ये एक्चुअली कैसा रहता है कि ये हम पूरा ऑर्डर डाल देते हैं, फिर वो जब भी मशीन तैयार होते जाते हैं तो वो धीरे धीरे वो डिस्पैच होते जाते हैं। दिस इज द टाइप ऑफ गवर्नमेंट ऑर्डर। मे बी एक दो मशीन का भी ऑर्डर आता है, लेकिन फिर वो अगर एक दो मशीन का है तो वो एट द सेम डे डिस्पैच भी हो जाता है। दिस इज द टाइप ओनली। इन सबके जो ऑर्डर्स है, इनका डेपो हमेशा MIDC फैक्ट्री धुए ही रहता है, क्योंकि ये जो ब्रांचेस है, मतलब कि ये जो स्पेशल ब्रांचेस बनाई गई है, उनके लिए उनका खुद का कोई डेपो नहीं रहता है। मे बी ऐसा हो सकता है कि हमारी ब्रांच कहीं पर भी रेडी ब्रांच है, सपोज ओडिशा में कोई हमारा गवर्नमेंट का काम करने वाला है, तो उसके पास अगर वो मशीन पड़ा है तो वो डाल सकता है यहाँ पर कि मैं ओडिशा से मशीन डिस्पैच करूंगा, तो वो बहरामपुर ब्रांच डाल सकता है। बहरामपुर डेपो में मशीन अगर रेडी है तो फिर से वो टैक्स टैक्स स्ट्रक्चर उसका चेंज हो गया, क्योंकि डिस्पैच का जो है लोकेशन वो ओडिशा से है। तो ये आउट ऑफ ओडिशा का मेरे को अभी टैक्स स्ट्रक्चर डालना पड़ेगा यहाँ से। बाकी तो वो फिर अपने आप ले लेगा। So these three are the important things, important sale orders we are processing nowadays. बाकी एक्सपोर्ट का भी ऐसा ही है। एक्सपोर्ट ऑर्डर भी अगर मैं डालने जाती हूँ तो उसमें भी कोई भी टैक्स स्ट्रक्चर नहीं है, और उसमें प्राइस लिस्ट है, लेकिन उसमें अभी हम एक्सपोर्ट ऑर्डर ये यूज नहीं करने का सोच रहे हैं। हम इसमें डायरेक्ट जा रहे हैं कि एक्सपोर्ट विल बी वन ऑफ द ब्रांचेस। क्योंकि क्या हो रहा है कि जब एक रिपोर्ट मिलता है हमको ऑल SO एंड कैंसलेशन का, तो उसमें करेक्टली समझ में नहीं आ रहा है कि एक्सपोर्ट किससे रिलेटेड है। तो हम ये ऑर्डर एक्सपोर्ट टाइप का जो SO है वो यूज नहीं करने का ऐसे सोचा है अभी हमने। तो ये हमारा बाजू में रखा हुआ है फिलहाल। तो अगर आप इसमें कुछ हमको देंगे आगे जाके तो हम ये भी यूज कर पाएंगे। हाँ हाँ, यस यस यस, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। हाँ हाँ। तो ये तीन ऑर्डर्स है फिलहाल तो, और एक है, ओके। और एक है हमारा STR। ये STR ऐसा है कि स्टॉक ट्रांसफर मीन्स आई हैव टू ब्रांचेस इन ओडिशा, बहरामपुर एंड कटक, एंड वहां पे मुझे कुछ मशीन्स रखने हैं क्योंकि उनको कैश एंड कैरी सेल करना है। तो उनका प्राइस लिस्ट अलग रहेगा, वो एंड यूजर का प्राइस लिस्ट नहीं रहेगा। सो आई हैव टू मेक अनदर SO टाइप फॉर दिस STR, है ना। तो इसमें टैक्सेशन कैसा होता है वो आपको सर बहुत ज्यादा अच्छी तरह से बता पाएंगे, लेकिन मैं आपको ये टाइप दिखा के रखती हूँ, क्योंकि ये प्लस माइनस हो जाता है, ऐसा सर ने जो थोड़ा बताया मेरे को याद है वो, कि हाँ मतलब इसमें टैक्सेशन के कुछ एंट्रीज नहीं होंगे ज्यादातर के ना। तो सपोज ये मैं MIDC में से डिस्पैच करने वाली हूँ, और ये डेपो में जाने वाला है बहरामपुर के, Orissa ke, then I will select the price list. So there are three price list. One is for automation products that Prachi is handling. The second is finished product for regular, and this is fair meter. So we are using this only. Then select item. I will go for. Hmm. Yes, yes, yes. Ah. Means while adding in SO.
एक्चुअली दैट इज नॉट नीडेड बिकॉज डीलर भी जब भी हमको ऑर्डर भेजता है तो उसका टाइप्स ऑफ ऑर्डर जो रहता है वो 10-15 टाइप का रहता है। तो एक एक में कैसा रहता है कि उसको 10 चाहिए मशीन्स, उसमें उसके एक्सेसरीज अलग अलग है। एक का उसमें उसको चाहिए 2 ही मशीन, उसमें उसके एक्सेसरीज अलग है, तो वो बारकोड हम कैसा करेंगे? हम्म। और वो उसका पीओ जो आता है उसके हिसाब से हम ये डेटा एंट्री कर रहे हैं। ईमेल। यस। नहीं, नहीं, एक्सेल, एक्सेल फाइल। या या बट ही डजंट नो द मॉडल। या हाँ। But the dealer doesn't know about the model code and all that. He just says that platform machine with capacity 150 kg and with platter size 600 by 600 with a dread display, give me 5 machines. So the person whoever is sitting there, he has to see which machine he exactly asking for. So he has, yeah, yeah. Yeah, this is our STR. So it is giving me the outstate tax structure. I will say okay here. Then I will enter the quantity through. He is asking for some 15 machines. So this price is much lesser because we do not apply anything like margins and all that. So this price is lesser as compared with the end user and dealer price list, right? So we have to make STR GST price list as a different type in price list icon. Now we will go for that only. So this is only the type of SO that we can add according to the requirement of that branch manager. He sends us the list of the machines he requires for that full month sell. So, he will send it in on 1st of July, whatever he needs till July. So we will just process this order. Then the machines will be sent via FX and Gati to the branch. So I'll cancel this. Now we will go for price list. There are many types of price list. So these are the types of price list we have currently made. This is dealer A. We will go for out of Maharashtra because there are many dealers in out of Maharashtra. So these are the icons here available. We can add price list, we can edit price list, we can delete if there is no operation on that price list. We can manage. So manage and edit are the two things I will show. Then clone price list means I have to make another price list using the same price list I can clone. Then that deactivate price list. So I think you have helped me for that uploading the price list. This is the same thing I have done on 1st of July because we have changed our price list and I have to prepare, I have to upload all those things on ERP and that was not that was not happening. So I have taken help from you. Huh. See this out of CSV. Huh. Yes, yes, yes. Same thing. This is the same thing. So when we see this price list, this is the thing. Means there are 1,206 items in this price list, as you can see. Yeah, accessories. There are only models. There are 1,002 models and remaining are the accessories. Like that.
Yes. Yes, exactly. Huh. We are our production is according to combination, but our order is according to model and accessory. Hmm. So this is the price list, and here are some workflow details. Those are given. I have to, if I have to change something, I have to create a new version and then edit the price, edit or add some items here, and then again make it as active price list. सो दिस इज द ओनली थिंग आई हैव एक्चुअली ऐसा हो रहा था कि बार बार मुझे बहुत ज्यादा मशीन्स ऐड करने पड़ रहे थे. सो ये वर्कफ्लो डिटेल्स में जो जितना भी दिया है ना, तो वो बहुत स्लो ऑपरेट हो रहा था. इसलिए आलोक सर ने क्या किया था मुझे कि ये आप प्लस यूज कर सकते हैं, इतना मेरे को आइकॉन दे दिया था. सो यू कैन ऐड इजिली. लेकिन अगर मैं वर्कफ्लो डिटेल्स में जाती हूँ ना, और इसको क्रिएट न्यू वर्जन बोल देती हूँ, क्रिएट न्यू वर्जन बोल देती हूँ यहाँ पे, तो ये सब जो है वो तीनों चारों एक्टिव हो जाते हैं फिर. मॉडिफाई प्राइस. हाँ. ये एक्चुअली क्या है कि ये अपलोड करने के लिए, हाँ, अपलोड करने के लिए. हाँ. या. यस यस यस. तो ये प्लस करके मैं कोई भी एक आइटम मैं खुद ऐड ऐड कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये अभी आइटम जो है ये यहाँ पे ऐड नहीं किया हुआ है सपोज. सो आई कैन ऐड हियर एंड से ओके. तो ये मुझे दिखने लग जाता है. M001696 मैंने ऐड किया. इसका मॉडिफाई प्राइस अगर मैं कर देती हूँ कि कुछ 6000 रुपीज इसका प्राइस है, तो ये अपने आप आ जाता है. तो ये मेरे को अगर देखना है 1696, तो ये मेरे को दिखने लग जाता है. तो ये प्लस का एकदम सिंपल ऑपरेशन दिया हुआ है कि ये मुझे मॉडल कोड पता होना चाहिए और ये मेरे को ऐड करते आना चाहिए, और एट द सेम टाइम आई कैन ऐड. तो ये प्राइस लिस्ट का जो ऑथराइजेशन है वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर लेवल पे दिया हुआ है. हाँ हाँ हाँ. नहीं, शायद ये एंट्री के लेवल पर दिया हुआ है यहाँ पर. एग्जैक्टली हाँ. या. हाँ, और ये एक्चुअली चाहिए. ये चाहिए एक्चुअली, क्योंकि क्या है ना, ये पता नहीं चलता है फिर कि ये क्यों हुआ था वगैरह ये सब. हम्म. हम्म. हाँ हाँ. एग्जैक्टली. ये यहाँ पे प्राइस लिस्ट पे यहाँ पर तो ठीक है, क्योंकि ओनली मी एंड प्राच्य वर्किंग ऑन प्राइस लिस्ट चेंजेस, अदरवाइज नो वन हैज दैट एक्सेस. लेकिन जब ये बीओएम का चेंज होता है ना, तो आई हैव गिवन एक्सेस टू 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 पर्सन्स इन माय डिपार्टमेंट. तो कुछ गलतियां हो जाता है ना, तो समझ में नहीं आता है कि ये किसने किया है और कब हुआ है एग्जैक्टली exactly. और उसका रिपोर्ट भी नहीं है. मतलब वो एंटर करते हैं कि suppose Pankaj has done that entry. So he will say that Pankaj has done that entry, and what change he has done, that will be entered by him. But I am not, at the end, I am not getting the report कि कब हुआ है ये. एंड दैट ये चलते रहता है. मतलब ये साइकिल में है कि आज बीओएम में ये चेंज हुआ, कल ये हुआ, परसों ये हुआ. ये चलते रहता है. तो परसों का जो चेंज है वो तो मुझे आज दिखता नहीं है, ऐसा है. हाँ. ये अभी हम ये बंद कर देते हैं. और ये प्राइस लिस्ट में अगर मैं एडिट में जाती हूँ, तो अभी ये थोड़ा टाइम लेगा. यस.
और यहाँ पर ऐसा हो गया है कि नंबर ऑफ डीलर्स, देयर आर नंबर ऑफ डीलर्स, सी द नंबर ऑफ डीलर्स आई हैव गिवन फॉर ये डीलर ए जो प्राइस लिस्ट है, यहाँ पर इतने सारे डीलर्स है डाले हुए। तो ये जब इतने सारे डीलर्स का है तो वो देर लगाएगा ही, ऐसा सब है। तो ये प्राइसेस जब मैं हम नया प्राइस लिस्ट क्रिएट करने जाते हैं तो हमको ये पहले ये स्क्रीन आता है, तो उसका नेम हम डाल पाते हैं यहाँ पर। बाद में ये अगर स्पेयर का प्राइस लिस्ट है तो स्पेयर की यहाँ पर हम टिक करेंगे, अगर नहीं है तो नहीं टिक करेंगे। ये एक्टिव करने के लिए यहाँ पर टिक है हमारे पास। देन अगर ये प्राइस इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस है तो यहाँ पर टिक करेंगे। बट जनरली वी डू नॉट डू दैट, बिकॉज जो टैक्स स्ट्रक्चर है वो अलग अलग रहते हैं, तो पता नहीं फिर किसका क्या सिलेक्ट हो जाए, तो हम ये अनटिक रखते हैं। और जो भी डेटा एंट्री ऑपरेटर है वो करेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर सिलेक्ट करके ये जो ऑर्डर है वो प्रोसेस करते हैं हमेशा। तो प्राइस लिस्ट टाइप, सो देर आर this much types of price list. One is dealer, export, general, interdivision, MRP, STR, and trading. So इतने इतने टाइप है। और अकॉर्डिंग टू दैट जो इंटरनल है, मतलब कि अगर एमआरपी का प्राइस लिस्ट है तो उसमें आपने देखा था कि कैश एंड पीडीसी ऐसा दो ऑप्शन आया था। तो वो यहाँ से आता है, मतलब कि अगर वो एमआरपी है तो वो उसको इंटरनली वो असाइन हो गया है, ऐसा है। सो ये डीलर प्राइस लिस्ट है। अगर एचएसएन कोड डालना है तो हम यहाँ पे डाल सकते हैं, लेकिन अभी हमारे मॉडल्स जो है उसमें दो एचएसएन कोड्स है, एक 8423, 82 और 83, ऐसे दो दो कोड्स है। तो हमने डाला नहीं है, वो वहां पे वो अपने आप आ जाते हैं, क्योंकि हम जब मॉडल डिफाइन करते हैं तो उसमें वो कोड अपने आप आ गया है। ये एचएसएन कोड क्यों किया है मैं आपको वो बोलती हूँ आगे। लेकिन फिर ये यहाँ पर ये सब टैक्स स्ट्रक्चर जो भी डिफाइन किए हुए पहले ईआरपी में वो सब दिख रहे हैं हम। लेकिन इस प्राइस लिस्ट के लिए जितने भी एप्लीकेबल है वही यहाँ पे है सिर्फ। दैट इज सो सिंपल। तो इतने प्राइस लिस्ट के स्ट्रक्चर डाल हमने एक्टिव करके रखे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो है मतलब कि ये यहाँ से भेजे जाने वाले हैं मशीन में भी। छत्तीसगढ़ से कोई डीलर ले रहा है, मे बी दादरा नगर हवेली से कोई डीलर ले रहा है, महाराष्ट्र से कोई डीलर ले रहा है, ओडिशा से कोई डीलर ले रहा है, तेलंगाना से कोई डीलर ले रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि बिहार का कोई डीलर ले रहा है तो उसका यहाँ पर नहीं है। ये लेने वाले का टैक्स स्ट्रक्चर डला हुआ है, मतलब जहां से ले रहे हो आप, मतलब समझ में आ रहा है ना। मतलब कि सपोज बिहार का एक डीलर है एंड ही वांट्स टू बाय समथिंग फ्रॉम छत्तीसगढ़, देन दिस टैक्स स्ट्रक्चर विल बी यूज्ड। एंड बिहार का कोई डीलर है वो महाराष्ट्र से लेना चाहता है तो ये टैक्स स्ट्रक्चर यूज हो जाएगा। हम्म। क्योंकि हमारी छत्तीसगढ़ और ओडिशा में ब्रांचेस है ना, तो ब्रांचेस में हमारे डेपोज है, तो वो डेपोज से डायरेक्टली ले सकते हैं डीलर्स। तो ये कनेक्शन यहाँ से है। ठीक है, तो ये मैं अभी बंद कर देती हूँ। और कोई तो भी एक महाराष्ट्र का लगाते हैं, महाराष्ट्र का एडिट करके देखते हैं प्राइस लिस्ट। सेम सेम थिंग, महाराष्ट्र एमआरपी नाम है इसका, ये एक्टिव है। ये टाइप एमआरपी है इसलिए यहाँ पे एमआरपी लिखा हुआ है। ये ब्रांचेस के नाम है सब, जो भी उसमें अपडेटेड है। आई कैन ऐड हियर मोर ब्रांचेस आल्सो एज पर रिक्वायरमेंट। और यहाँ पर जो टैक्स स्ट्रक्चर सिलेक्ट किए हुए हैं वो यहाँ पर दिख रहे हैं हमको। सिंपल, बंद कर दो। So I'm canceling this. So I think this was for finished items price list. There are spare price list also. स्पेयर स्पेयर में जो कोड्स रहते हैं ना वो मॉडल्स नहीं रहते हैं।
मॉडल्स एंड एक्सेसरीज का जो प्राइस लिस्ट है वो अलग है, और स्पेयर का जो है वो हम कंपोनेंट और असेंबली लेवल पर जो सपोर्ट करते हैं, हाँ, वो है। हम्म, एक मिनट, हाँ, मैं यहाँ पे डीलर कर देती हूँ। तो ये डीलर का स्पेयर का प्राइस लिस्ट है। अगर हम इसको एडिट करने जाते हैं, हम्म, ये अभी, ये HSN कोड जो है ना, ये अभी आ गया है यहाँ पर, क्योंकि ये HSN कोड जो है ना वो इनवॉइस पर प्रिंट हो रहा है 842390। एक्चुअली पिंक स्केल का जो स्पेयर का HSN कोड है वो अलग है, और उसका फिनिश्ड कोड का, फिनिश्ड आइटम का जो कोड है वेइंग स्केल का, वो अलग है। तो इसको कैसे कैसे करें, इसलिए ये ट्रिक निकाला था कि जब भी स्पेयर का प्राइस लिस्ट बनेगा तो उसका HSN कोड जो है वो यहाँ पर असाइन हो जाएगा। अभी दूसरा भी प्रोडक्ट है हमारे पास जो करेंसी काउंटिंग है, उसका HSN कोड अलग है। होम ऑटोमेशन का भी है हमारे पास, जिसका स्पेयर का कोड अलग है, तो उसका भी HSN कोड अलग है, इसलिए उसका भी अलग प्राइस लिस्ट बन गया है, लाइक दैट। तो यहाँ पर वो व्यू में आ रहा है अभी। डीलर के स्पेयर के प्राइस लिस्ट में HSN कोड अगर ये हम डाल रहे हैं, तो जब भी इसका इनवॉइस बनेगा तो हर स्पेयर के आगे उसका HSN कोड डालना मस्ट है हमारे इनवॉइस के रूल्स के अनुसार। तो वो 842390 वो डिस्प्ले होते रहेगा, छपते रहेगा। जब ये इसका इनवॉइस देखेंगे ना, तब ये हमको पता चलेगा। तो ये दिस मच डीलर्स आर असाइंड टू दिस प्राइस लिस्ट, एंड वी विल सी दिस प्राइस लिस्ट नाउ, हाउ इट इज देयर। So now you can see, this is a sticker, this is assembled PCB, all those things required to make any finished item. तो इसमें असेंबलीज भी होंगी, इसमें स्पेयर आइटम भी रहेंगे, जैसे कि स्टिकर है, जैसे कि स्विच है, और कोई कैबिनेट है, कोरुगेटेड बॉक्स है, जो भी लगने वाला है वो हर एक आइटम जो डीलर को लगने वाला है वो यहाँ पर उसका स्पेयर का प्राइस जो है वो डला हुआ है। और जब भी इसका स्पेयर का ऑर्डर डालेंगे, तब इसमें से ही वो एक एक आइटम उठाएंगे, और वो उनको पता होना चाहिए कि ये आइटम कौन सा है। तो वो हमारा जो सपोर्ट का पूरा टीम है, मतलब 4 लोग हैं हमारे यहाँ पर सपोर्ट में, वो हेल्प करते हैं कि डीलर को क्या चाहिए वो एग्जैक्टली समझने के लिए, जो डेटा एंट्री ऑपरेटर काम कर रहे हैं उनके लिए। मतलब कि डेटा एंट्री ऑपरेटर जो रहते हैं उनको पता नहीं रहता है कि ये कौन सा स्पेयर मांग रहा है डीलर। तो हाँ, तो वो डीलर से इंफॉर्मेशन लेते हैं कि ऐसा ऐसा चाहिए, फिर उसका कोड जो है वो सपोर्ट टीम बताती है। एवरीथिंग इज वर्किंग ऑन कोड ओनली। तो ये स्पेयर का जो ऑर्डर है वो हमारा अलग से आइकॉन है, स्पेयर एसओ। यहाँ पर अगर मैं प्लस करती हूँ तो यहाँ पे इतने सारे स्पेयर एसओ हम डाल सकते हैं। हाँ, डीलर का स्पेयर एसओ है, एक्सपोर्ट का स्पेयर एसओ है। ये इंटर यूनिट तो अभी बंद ही हो गया है, अभी इंटर यूनिट चलता नहीं है। स्पेयर एसओ सिंपल वाला, मतलब कि कोई कस्टमर मांग रहा है कोई और, तो वो स्पेयर एसओ है ये। बाद में ये STR of dies and molds, STR of plant and machinery, and STR of spares. So these two things were necessary when we were transferring all our material from Parvanu to Dubai. तो इसके लिए डाइज एंड मोल्ड्स और प्लांट एंड मशीनरी के लिए हमने ये सब बनाया था, लेकिन अभी ये इसका कुछ यूज नहीं है वैसे देखा जाए तो। हाँ, हाँ, सिर्फ डीलर का स्पेयर है। सो अगर हम एक देख लेते हैं, अगर मैं जाती हूँ यहाँ पे, सपोज ये डेप्रो MIDC में से जाने वाला है, डीलर जो है वो AC विंग है, वो फिर मेरे को पूछेगा कि पेमेंट टाइप कैसा है ये, न्यू स्पेयर है या रिप्लेसमेंट है। तो न्यू, एक्चुअली रिप्लेसमेंट स्पेयर ऐसा है कि सपोज उसने 2 PCBs भेजे हैं, और उसको सिर्फ रिपेयर करके हमको देना है। तो हम क्या करते हैं, सपोज वो सेल करने की प्राइस उसको उसकी 500 रुपए है, तो रिप्लेसमेंट की प्राइस जो है वो 250 है।
तो वैसे हमने वो प्राइस लिस्ट में डाल के रखा है, वो न्यूज पेयर में जा रहा है, सपोज सिलेक्ट प्राइस लिस्ट, देन आई विल से डीलर स्पेयर प्राइस लिस्ट, आई विल से ओके, देन अभी मुझे पता रहता है कोई आइटम कोड, तो मैं यहाँ से डाल देती हूँ डायरेक्टली उसको, नहीं ये तो प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा, शायद C004919, तो ये इंडिकेटर है, तो इंडिकेटर प्राइस लिस्ट में डाला हुआ है, तो वो क्वांटिटी पूछ रहा है डायरेक्टली, तो मैंने 10 डाल दिया, देन वो नेक्स्ट पूछ रहा है, ये बाकी तो सेम है, देखिए यहाँ पर भी डेबिट वगैरह बैलेंस दिखा रहा है, यस यस यस, हाँ, सपोज मैंने कोई और एक डाल दिया आइटम C002749, तो ये मैंने डाल दिया, 12 चाहिए उसको, तो ये अपने आप ये बस, बाकी बाकी तो सब प्रोसेसिंग वही है, बाकी इसमें प्रोसेसिंग में कोई भी चेंज नहीं है। ये रहा, हाँ, डिफरेंशिएशन था, हाँ हाँ, तो यहाँ पर दिख नहीं रहा है वैसा, बराबर है, कि डायरेक्टली टोटल ले लिया है उसने। हाँ हाँ हाँ, और अगर मेरे को यहाँ पे प्राइस चेंज करनी है तो ये मैं यहाँ पर भी कर सकती हूँ, कि हाँ, और यहाँ पर, हाँ, पासवर्ड, so that is another facility, so like that I can enter all those items, and then it will be dispatched from the spare dispatch department. Hmm. Secondly, एक्चुअली मैंने आपको कल बोला था कि कोई जीआरएन करते वक्त हमारा कुछ मटेरियल जो अगर रिजेक्ट हो जाता है तो फिर भी हम जीआरएन कर लेते हैं, राइट, तो जीआरएन होने के बाद फिर हमको फिर वी आर सेंडिंग बैक इट टू द सप्लायर थ्रू स्पेयर एसओ, तो ये जो स्पेयर एसओ है दैट वी आर यूजिंग फॉर दैट ओनली, suppose ये MIDC है, then depo is again MIDC, and the customer is, I know that Kairali is one of our supplier, and he has supplied um, frames to us, and that was faulty. So there is one supplier price list available, supplier spare price list. I will select that, and then I will enter code here that I want to return, and like that I can return. So this is for returning the material that is faulty back to the supplier. ठीक है, ये बंद कर दूं। हम्म। अभी आगे इनवॉइस में जाना है। ओके, फाइन। या आपको ERP में सब फैसिलिटी है ना, मतलब कि ऑथराइजेशन से, दैट इज फाइन। या हाँ 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 हाँ, यस यस यस, yeah, you can use my password only, because what happens कि अगर एम्प्लॉय नहीं है ना तो हम नया लॉगिन क्रिएट नहीं कर